Assalamu alaikum, dear student. I am your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College, number 1 Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Student, we are studying nuclear physics course, and today we are going to start next unit of nuclear physics, which is called unit number 4, and it is associated with nuclear forces and their basic properties. Who has developed the concept of nuclear force, and how can we define and explain or provide certain justification of nuclear forces? So in order to understand the real concept of nuclear force, first we consider a simplest example. Let us consider two protons residing inside the nucleus of an atom. And we know that proton is an electrically charged particle. When two protons residing inside the nucleus of an atom, there exists a massive Coulomb repulsion force between them, as well as a very small or negligible gravitational attractive force is also exists between two protons because of their masses. So first of all we calculate gravitational attractive force between two protons and then Coulomb repulsion force between same proton if they are separated by a distance of 1 femto. 1 femto mean, or sometime you can say 1 Fermi distance, 10 power minus 15 meter. It means that both protons residing inside the nucleus at a distance of 10 power minus 15 meter, which is close to the dimension of a nucleus. So according to gravitational Newton law of gravitation, F of g, gm1 m2 by r square. If we take m1 is the mass of one proton and m2 is the mass of second proton, then both particles have same masses. So the relation become Fg gm square divided by r square. And now on the other hand, if we consider the Coulomb repulsion force between same two protons, then we apply Coulomb law of electrostatic. Fc is equal to k q1 q2 by r square. Q1 is the charge of one proton and q2 is the charge of second proton. So both proton has same magnitude of charge. So the relation become k q square by r square. If we take the ratio of these two equations, Coulomb force, Coulomb repulsion force and gravitational attractive force, then the factor becomes 10 power 38. Or you can say F of c, the Coulomb force between two proton is equal to 10 power 38 times the gravitational force of attraction between same two proton. It means that Coulomb repulsion force is greater than 10 power 38 times gravitational attractive force between two protons residing inside the nucleus of an atom. If these two protons repels each other with such a tremendous force, then in heavier nuclei or any nuclei which contain large number of nucleons, proton and neutron, the repulsion factors will become dominant and all repelling proton would fly off in all direction, and as a result nucleus becomes in unstable state. All the nuclei present in the universe would become unstable state. In 1935, Japanese scientist Yukawa proposed that if two protons repel each other with such a tremendous force, which holds the nucleon together inside the nucleus in a stable state, which bind the nucleon inside the nucleus in a stable state, he suggests that there is something else, or you can say there is an additional force act between any two nucleon inside the nucleus, which provide the extra stability to all the nucleon residing inside the nucleus, and as a result nucleus lie in a stable state. बात कुछ इस तरह की थी कि 1935 में जापानीज साइंटिस्ट युकावा ये सजेस्ट करता है कि अगर न्यूक्लियस में किसी भी दो न्यूक्लियन जो कि प्रोटॉन है, सिमिलरली चार्ज पार्टिकल,
ये अगर एक दूसरे को रिपेल करते हैं इस फैक्टर के तहत, क्योंकि ये कूलम रिपल्शन फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया है 10 पावर 38 मीन 1 के आगे 38 ज़ीरो लगा दें, तो आप इसको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए यूँ समझे कि अगर 1 के आगे 6 ज़ीरो लगाता हूँ मैं, तो इससे मुराद ये हुआ कि कूलम रिपल्शन फोर्स 1 मिलियन टाइम ग्रेटर है ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स से। 10 पावर 9 होता तो 1 बिलियन टाइम, 10 पावर 10 बिलियन टाइम, तो ये 10 पावर 38 टाइम है। इतना मैसिव रिपल्सिव फैक्टर्स जो है प्रोटॉनों के दरमियान आ रहा है, तो फिर तो क्या होना चाहिए कि न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तमाम प्रोटॉनों को क्या हो जाना चाहिए, फ्लाई ऑफ हो जाना चाहिए इस मैसिव रिपल्शन एलिमेंट की वजह से, और न्यूक्लियस अनस्टेबल हो, उसके ऊपर सिंगल यही जो कूलम रिपल्शन फोर्स है जो आउटवर्ड उसको पुल कर रही है। न्यूक्लियन जब आउटवर्ड पुल होंगे तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर शैटर्ड हो जाएगा और स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो युकावा ये खुद से सजेस्ट करता है कि न्यूक्लियस के अंदर इन दो फोर्सेस के अलावा कूलम रिपल्शन फोर्स और जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स को हम इतना डोमिनेंट या इतना सिग्निफिकेंट रोल इसका नहीं कंसिडर करते। वो इसलिए कि जी जो है इसमें कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है 6.67 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एक लिमिटेशन है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो इसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो निग्लिजिबली स्मॉल है, उसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर ये रिपल्शन फोर्स है तो युकावा ये सजेस्ट करता है, वो ये कहता है कि इस रिपल्शन फोर्स के अलावा कोई एडिशनल फोर्स भी मौजूद है, और वो जो एडिशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। वजह कि रिपल्शन फोर्स आउटवर्ड रिपेल कर रही है न्यूक्लियंस को, अगर एडिशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर नहीं है तो फिर तो न्यूक्लियस मजीद अनस्टेबल होगा, तो वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगी और इनवर्ड पुल प्रोवाइड करेगी तमाम न्यूक्लियंस को, जस्ट लाइक सरफेस टेंशन इफेक्ट। जिस तरह सरफेस टेंशन इफेक्ट स्फेरिकल वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंसिडर करें तो स्फेरिकल वाटर मॉलिक्यूल की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो, और जो इनवर्ड होते हैं, अब इनवर्ड वाले सरफेस मॉलिक्यूल्स को आप इनवर्ड मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट करते हैं, इनवर्ड पुल प्रोवाइड करते हैं, एक सरफेस टेंशन इफेक्ट होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल की स्फेरिकल शेप मेंटेन रहती है। तो इस तरह यहाँ पर भी ये जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है ये इनवर्ड पुल या सरफेस टेंशन इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो इसकी कुछ डिस्टेंस तक जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स की, वो कूलम रिपल्शन फोर्स के ऊपर डोमिनेंट है। एक चीज़ होगी। तो यहाँ ये जो युकावा सजेस्ट कर रहा है इसके पीछे एक स्टोरी भी है, और वो ये स्टोरी ये है, बल्कि आगे आके चार्ज इंडिपेंडेंट के केस में मैं ये बताऊँगा कि उसने ये सजेशन वैसे नहीं की। वो ये कहता है कि नेचर में जो 3 फोर्सेस हैं, before grand unification there were 4 forces exist in the nature, or after grand unification theory when 2 forces unified with each other, electromagnetic force and weak nuclear force, when these 2 forces combine with each other, unified with each other, then they become electro weak force. So there are 3 forces exist in nature: gravitational force, a force which is responsible for the motion of all heavenly bodies, कि जितने भी planets हैं इनकी मोशन को रिस्पांस करने वाली जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यूनिवर्स में एनी 2 मटेरियल ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। फ्री फॉल मटेरियल ऑब्जेक्ट या कर्वेचर ऑफ फ्री फॉल मटेरियल ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाटएवर। तो इस फोर्स में युकावा इस तरफ इशारा करता है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में जब भी 2 मासेस when 2 masses interact with each other or attract with each other, there is a virtual particle should be exchanged between them. This exchange or mediating particle between 2 masses is called graviton, having spin 2, which is yet to be discovered experimentally. कि जब 2 मासेस जो है, ये युकावा का ख्याल नहीं था, युकावा अपनी फोर्स के बारे में आइडिया देगा, लेकिन उसने ये कहा कि जिस तरह साइंटिस्ट या पीपल ये बिलीव करते हैं कि जब 2 मासेस आपस में अट्रैक्ट करती हैं तो इन मासेस के दरमियान एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है जिसको मेडिएटिंग पार्टिकल कहते हैं, और ये एक्सचेंज पार्टिकल है ग्रेविटॉन जिसकी स्पिन 2 है। इसको थ्योरेटिकली प्रपोज किया गया है, एक्सपेरिमेंटली अभी तक ये डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, लेकिन एनी हाउ एक
थ्योरेटिकल आइडिया है अट्रैक्टिव दो मासेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है कि ये इस एक्सचेंज पार्टिकल की वजह से एग्जिस्ट करती है। बाकी जो दो केसेस है उनमें एक्सपेरिमेंटली बात डिस्कवर्ड हो चुकी है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, when electron is revolving around the nucleus, a force which is responsible for the binding of atoms or molecules of an element, कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स और मॉलिक्यूल को जो फोर्स बाइंड रखती है, यूनाइट रखती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन द एक्सचेंज और मीडिएटिंग पार्टिकल इज दैट ऑफ फोटॉन। फोटॉन है, और फोटॉन आपको पता है कि ये एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड भी हो चुका है, और मैक्स प्लांक्स ने इसका कैविटी रेडिएशन कॉन्सेप्ट से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से सक्सेसफुली आइडिया दिया और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो दिस इज़ अ एक्सचेंज पार्टिकल बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इन केस ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस की पॉपुलेशन ग्रेटर हो जाती है, हैवियर न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर 200 से ग्रेटर होते हैं मास नंबर, तो याद रख लें वो न्यूक्लियाई नेचुरली डिके होते हैं, और जब वो डिसइंटीग्रेट या डिके होते हैं इट एमिट न्यूक्लियर रेडिएशंस अल्फा बीटा और गैमा रेज। तो वो फोर्स जो रेडियो एक्टिविटी को रेस्पॉन्स करे, जो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द एमिशन ऑफ बीटा डिके, इस फोर्स को कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इस फोर्स में जो पार्टिकल्स एक्सचेंज होता है बिटवीन न्यूक्लियन, इसे डब्ल्यू बोजान और जेड बोजान कहा जाता है, जिसकी इंटीग्रल स्पिन है। और ये डब्ल्यू बोजान और जेड बोजान, जी बोजान, ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया जा चुका है। तो इस तरह वीक न्यूक्लियर फोर्स में एक्सचेंज पार्टिकल क्या हुआ? बोजान। तो योकावा 1935 में कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं, प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वर्सेस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन, एक वर्चुअली एक्सचेंज पार्टिकल्स होता है जिसकी वजह से फोर्स एग्जिस्ट करती है, और उस एक्सचेंज पार्टिकल्स का नाम है पायांस और मीज़ान। मैंने यहाँ पर लिखा है पायांस और मीज़ान, और ये तीन तरह के हैं। पाई सिंबल है इनका, पॉजिटिव मेज़ान, नेगेटिव मेज़ान, न्यूट्रल मेज़ान। तो व्हेन एनी टू न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम virtually exchange meson or pion, then force exists between them which provide relative stability to these nucleon, and as a result nucleus will attain a stable structure or stable shape. This force is called strong nuclear attractive force. तो यहाँ पर युकावा का ये आइडिया कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियन के दरमियान कूलम रिपल्शन फोर्स के अलावा जो एडिशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, उस फोर्स का क्या नाम है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। और ये किस वजह से अराइज करती है? विद एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल मीज़ान, और वो मीज़ान जो है पाई सिंबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल मेज़ान। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स exist between any two nucleon inside the nucleus of an atom which provide stability to the nucleus is called strong nuclear force. फिर सुने, a strong attractive force which hold nucleons together inside the nucleus in a stable state. A strong nuclear force which bind nucleons together inside the nucleus in a stable state is also called strong nuclear force. So this is called strong nuclear force. अब इसकी कुछ properties हैं. What are the basic properties of strong nuclear force? First one is called saturation property. Saturation property क्या होती है? याद रख लें, ये जो strong nuclear force है, योकावा के आइडिया के तहत जो न्यूक्लियस की डायमेंशन है 10⁻⁻14 मीटर है। हम इसको यूँ समझते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक न्यूक्लियस है स्फेरिकल शेप का, फुटबॉल सिंबल का। एक फुटबॉल है तो उसका एक डायमीटर होगा, साइज़ होगा, और वो डायमीटर मैं सजेस्ट करता हूँ 10 सेंटीमीटर। फुटबॉल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर में सजेस्ट करता हूँ। अब इस 10 सेंटीमीटर के अंदर जो उसका वॉल्यूम है इनसाइड, इसमें हम न्यूक्लियंस की फिलिंग करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स
जो कि हेड्रॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। न्यूक्लियंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एड्रॉन्स कहा जाता है, याद रख लो। और अकॉर्डिंग टू स्पिन इनको फर्मियान्स भी बोलते हैं। दोनों की स्पिन हाफ एच कट होती है, हाफ एच कट। तो अगर ये न्यूक्लियंस प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वर्सेस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन, इस फुटबॉल जिसका साइज 10 सेंटीमीटर है, इस 10 सेंटीमीटर के लेस डिस्टेंस में आएंगे, यानी एनी टू न्यूक्लियन विच आइदर separated at a distance of 5 centimeter, 6 centimeter, 7 centimeter or 8 centimeter, they interact strongly with each other। और वो न्यूक्लियंस जो equal to the dimension of फुटबॉल या equal to the dimension or size of न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अपने डायमेंशन के इक्वल रिलेटिवली दूर पड़े हुए हैं, यानी एक न्यूक्लियन सेंटर पे है न्यूक्लियस पे और दूसरा सरफेस पे है, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। यानी इंटरेक्शन एग्जिस्ट अमंग द नियरेस्ट नेबर्स, सबसे क्लोज और जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे, नेबरहुड न्यूक्लियंस होंगे, इनके दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रांगली होगी और वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। जो साइड न्यूक्लियंस हैं विच आर फार अवे फ्रॉम द नियरेस्ट नेबरहुड, उनके दरमियान ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो युकावा ये कहता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर लिमिटेड इन रेंज। रेंज से मुराद ये है कि डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस वाइज वेरी लिमिटेड होती हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर लिमिटेड इन रेंज एंड एज ए रिजल्ट न्यूक्लियन इंटरेक्ट स्ट्रांगली ओनली विद देयर नियरेस्ट नेबर्स। देयर इज नो इंटरेक्शन एग्जिस्ट अमंग द फार अवे फारदेस्ट न्यूक्लियंस, जिनके दरमियान सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको मज़ीद इस आइडिया को इस तरह समझते हैं कि लेट एनी टू न्यूक्लियंस इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद ईच अदर and the binding energy between two nucleon we assume that 8 MeV। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि टू न्यूक्लियन के दरमियान जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 8 MeV है टू न्यूक्लियन के दरमियान। और न्यूक्लियस में लेट्स सपोज 50 न्यूक्लियंस पड़े हुए हैं, यानी एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसका टोटल मास नंबर क्या है 50 है। तो देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर हर टू न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी 8 MeV है और टोटल 50 न्यूक्लियंस है, तो देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाई 8 400 MeV। तो बाइंडिंग एनर्जी देखें मास नंबर के साथ क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, ये हमने पढ़ा भी था पहले जो है। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A या इज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर A। अब टोटल 50 थे, तो अगर मैं कहता हूँ हर दो न्यूक्लियन, तमाम के तमाम न्यूक्लियंस उस क्लोज रेंज में आ गए और वो इंटरेक्ट कर रही हैं, तो अगर A न्यूक्लियंस होंगे तो एथ न्यूक्लियन वो 50वां न्यूक्लियन है, तो पीछे फिगर क्या आएगा A-1 49, यानी 50 - 1 क्या हो जाएगा 50 - 1 इज कॉल्ड 49। तो यहाँ से एक जनरल रिलेशन बनाते हैं, इफ मास नंबर इज डिनोटेड बाई A, टू न्यूक्लियंस के दरमियान इंटरेक्शन हमने कह दी, तो इंटरेक्शन मास नंबर के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो जो रेस्ट ऑफ न्यूक्लियंस होंगे, कहते हैं इफ ईच न्यूक्लियन इंटरेक्ट विद ऑल अदर रेस्ट न्यूक्लियन, कि एक इंडिविजुअल न्यूक्लियन जो है तमाम रिमेनिंग न्यूक्लियन से इंटरेक्ट करता है, तो वो रिमेनिंग न्यूक्लियन कितने हो जाएंगे A-1। सो द इंटरेक्शन विल बी, तो टोटल इंटरेक्शन क्या हो जाएगी हर इंडिविजुअल की इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, ये इक्वल होगी A इंटू A-1। तो A तो आगे ना टोटल्स, ठीक है, और A-1 और टोटल में से एक को माइनस कर ले, वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो पीछे 49 रह जाएंगे। तो इस तरह ये नंबर बनता है A² - A। अब ये थ्योरेटिकल आइडिया याद रख लो, ये एक्सपेरिमेंट इसको फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये क्योंकि थ्योरेटिकल आइडिया उस वक्त प्रपोज किया गया था तो इसे हमने समझना है। तो हैवी न्यूक्लियाई में ये एक थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थी कि फॉर हैवियर न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर बहुत ग्रेटर होता है, तो इंटरेक्शन न्यूक्लियर इंटरेक्शन यानी न्यूक्लियन जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो कैसे वेरी करती है A इंटू A-1, तो A इंटू A² जिस तरह ऊपर आया था -A। तो हैवियर न्यूक्लियाई में ये जो सेकंड टर्म है -A, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। तो हैवियर न्यूक्लियाई में वो कहता है कि इंटरेक्शन क्या होगी, ये A² की इक्वल होगी, जबकि जनरल डिस्क्रिप्शन ये है कि लाइटर न्यूक्लियाई के लिए डिस्क्रिप्शन क्या बनती है A² - A। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि इक्वेशन 4
इंटरेक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियन ए स्क्वायर माइनस ए, और हैवी न्यूक्लियाई के लिए इंटरेक्शन ए स्क्वायर। These two result is not or does not followed by experiment. Experiment इसको फॉलो नहीं करता। एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि इंटरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। ये मास नंबर या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन के प्रोपोर्शनल आ जाती है। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, शॉर्ट रेंज। अभी मैंने कहा है कि इन केस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस एनी टू न्यूक्लियन स्ट्रांगली इंटरैक्ट विद नियरेस्ट नेबर्स। जो फार अवे न्यूक्लियंस होंगे उनके दरमियान ये एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी टोटल न्यूक्लियस का जो साइज होगा उस न्यूक्लियर साइज से लेस डिस्टेंस पे जो न्यूक्लियंस होंगे, मैंने एग्जांपल दी थी 10 सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर से लेस क्या बन रहा है? 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इन डिस्टेंसेस पे जो न्यूक्लियन आएंगे वो आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। जबकि हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मासेस के दरमियान, बिटवीन मून एंड अर्थ, बिटवीन अर्थ एंड सन, बिटवीन मून एंड सन एंड आर अदर प्लैनेट्स, जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, तो ये तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस के दरमियान जो फोर्स है वो न्यूक्लियर साइज से लेस डिस्टेंस, और न्यूक्लियर साइज क्या होता है? 10⁻⁻14 मीटर। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस पे एक्ट करती है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है। तो ये रिलेटिवली बहुत आसान किस्म की एक्सप्लेनेशन है। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इंडिपेंडेंट। युकावा ने 1935 में जब ये थ्योरी प्रपोज की, युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, जो डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ मैं आइडिया डेवलप कर रहा हूँ कि जब वो कहता है कि जिस तरह ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स में एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटॉन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में फोटॉन एक्सचेंज पार्टिकल है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स में जो डब्ल्यू बोजान या जेड बोजान एक्सचेंज पार्टिकल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जब न्यूक्लियंस के दरमियान एक्ट करती है तो किन दो न्यूक्लियन के दरमियान ये इंटरैक्ट करती है। तो उसने एक्सपेरिमेंटली ये बाद में बात प्रूवन की। पहले तो ये थ्योरेटिकल आइडिया था कि ये जो फोर्स है प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन भी है, और न्यूट्रॉन वर्सेस न्यूट्रॉन भी है। यानी अगर इसका एक ये आप देखें, एक प्रोटॉन जब नेगेटिव मेज़ान को एब्जॉर्ब करता है या पायांस को एब्जॉर्ब करता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा, और इसी तरह न्यूट्रॉन एक पॉजिटिव मेज़ान को एब्जॉर्ब करता है तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं डबल साइक्लिक रिएक्शन में कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्जन है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्जन है। और ऊपर नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंज ऑफ मीज़ान, पाई माइनस और पाई प्लस। अगर कोई प्रोटॉन न्यूट्रल मेज़ान एब्जॉर्ब कर ले, पाई नॉट इज द सिंबल फॉर न्यूट्रल मेज़ान, तो प्रोटॉन प्रोटॉन में ही कन्वर्ट होगा। लेकिन प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन कूलम रिपल्शन के अलावा एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगी, यानी प्रोटॉन रिपेल भी कर रही हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रही हैं। तो इस तरह ये प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन, और इसी तरह न्यूट्रॉन अगर न्यूट्रल मेज़ान एब्जॉर्ब करता है तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एक बड़ी प्यारी एग्जांपल युकावा ने सजेस्ट की थी कि जिस तरह दो प्लेयर्स स्क्वैश या टेबल टेनिस खेल रहे हैं या शटल खेल रहे हैं, तो एक प्लेयर स्टिक जो है, स्टिक की मदद से शटल दूसरे की तरफ फेंकता है, और दूसरा जो है कुछ टाइम बाद उसकी एक रेंज होती है, वही शटल अपनी स्टिक की मदद से दूसरी की तरफ फेंक देता है। यानी अगर आपके पास मेरे हाथ में एक रेड बॉल है और एक वाइट बॉल है, बात को समझे, ये रेड बॉल प्रोटॉन है और वाइट बॉल न्यूट्रॉन है। मैं एट अ टाइम ऐसा करता हूँ, रेड बॉल को एयर में फेंकता हूँ और उसी वक्त वाइट बॉल को बाएं हाथ से फेंकता हूँ। अब दाएं हाथ में रेड बॉल प्रोटॉन थी तो वो बाएं हाथ में आ गई, और बाएं हाथ में जो वाइट बॉल जो कि न्यूट्रॉन थी वो दाएं हाथ में आ गई, और ये मैं इस तरह जो है ना दोनों बॉल्स एयर में पुश करता रहता हूँ, फेंकता हूँ, और ये एक्सचेंज होती रहती हैं। तो इट मीन कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस
आपस में अपने करैक्टर को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, और साथ में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मीज़ान। यानी मीज़ान या पायान की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है कि न्यूक्लियंस की तरह, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह किसी कोने में बैठे हुए होंगे, छुपे हुए होंगे। जब इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है उस वक्त वर्चुअली बर्थ होती है इनकी। जिस तरह देखिए ये इंटरेक्शन है ना, मैं बाल फेंक रहा हूँ तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो ये एक बड़ी प्यारी एग्जांपल उसने दी है। आपके सामने स्क्रीन पे भी ये डिस्प्ले हो जाएगी कि ये जो स्टिक को जो है ना, शटल को स्टिक की मदद से फेंका जा रहा है, यही काम न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इस तरह यहाँ से हमें इल्म ये हुआ कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है ये चार्ज डिपेंडेंट फोर्स नहीं है, बल्कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। ये न्यूट्रल न्यूट्रॉन के दरमियान भी है, और चार्ज प्रोटॉन के दरमियान भी है, और चार्ज प्रोटॉन और अनचार्ज न्यूट्रल न्यूट्रॉन इनके दरमियान भी पाई जाती है। बेसिकली ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, स्पिन ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है। तो इस तरह ये एक्सचेंज ऑफ मीज़ान का कंसेप्ट था। ये आगे जाके हम डिटेल में इसको बात को करेंगे। अब इस इंटरेक्शन में बिफोर युकावा आइडिया या युकावा थ्योरी 3 साइंटिस्ट और थे। उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस की इंटरेक्शन के मतलब 3 थ्योरी डेवलप की थी, 3 आइडियाज़ डेवलप किए थे। वो भी ज़रा गौर से सुनिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक मेजरना था, दूसरा बटलेट था, और तीसरा हेज़नबर्ग, जिसने हेज़नबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल दिया था। इनके आइडियाज़ बड़े इंटरेस्टेड हैं। ये कहते हैं मेजरना आइडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजरना ने न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस की इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, इस फोर्स का नाम दिया स्पेस एक्सचेंज फोर्स। अब ये क्यों, कैसे? कहते हैं कि हर न्यूक्लियन के साथ एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन साई है। जब 2 न्यूक्लियंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो जो मेरी तरफ दें, मेरे दाएं हाथ में एक न्यूक्लियंस है, प्रोटॉन है, और बाएं में दूसरा है न्यूट्रॉन। और हमें ये इल्म है कि न्यूक्लियन स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल से ये न्यूक्लियस के अंदर स्पिन कर रही हैं। तो अगर प्रोटॉन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है और न्यूट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और आप इन दोनों को देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सर्टन ऑरिजिन, ये ऑरिजिन है। जिस तरह आप मेरे सामने हो, तो किसी भी स्टूडेंट को जब मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ तो स्टूडेंट पार्टिकल होगा, न्यूक्लियन ट्रीट कर ले, और मुझ तक जो डिस्टेंस होगा दिस इज पोजीशन वेक्टर। क्लियर होगी बात? ये दाईं तरफ का स्टूडेंट है तो ये इसका पोजीशन वेक्टर r1 आ रहा है, और जो इस तरफ बैठा हुआ है इसका पोजीशन वेक्टर r2 आ रहा है। तो प्रोटॉन ये है, प्रोटॉन का विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन पोजीशन वेक्टर r1 और न्यूट्रॉन का पोजीशन वेक्टर r2, और ये स्पिन भी कर रहे हैं। पॉइंट को समझना है। बिफोर इंटरेक्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेव फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट एज वेल एज स्पिन ओरिएंटेशन। यानी साई इज ए फंक्शन ऑफ r1 r2 s1 s2। तो r1 क्या चीज़ है? पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियन। r2 क्या चीज़ है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड न्यूक्लियन। और s1 और s2 क्या है? स्पिन ओरिएंटेशन, जो स्पिन कर रही हैं। तो मेजरना ये कहता है कि बिफोर इंटरेक्शन उनका वेव फंक्शन ये होगा, और आफ्टर इंटरेक्शन जब न्यूक्लियंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अभी मैंने कहा था ना कि ये मेरे हाथ में प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, जब मीज़ान एक्सचेंज होगा तो ये दाएं हाथ वाला प्रोटॉन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। और ये क्या बन जाएगा? प्रोटॉन बन जाएगा। तो ये शख्स जो दाईं तरफ बैठा हुआ था ये प्रोटॉन था, बाईं तरफ वाला न्यूट्रॉन था, इसका पोजीशन वेक्टर r1 था, इसका r2 था। अब ये प्रोटॉन नहीं रहा, ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो पोजीशन वेक्टर दूसरे का था ना। तो इस तरह वेव फंक्शन में क्या चेंज आई? उनके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो इंटरचेंज हो गए। r1 रिप्लेस हो गया r2 में, और r2 रिप्लेस हो गया r1 में, और उन दोनों की स्पिन अपनी जगह पर सेम है अकॉर्डिंग टू मेजरना। तो इसलिए इसे कौन सी फोर्स कहते हैं? स्पेस एक्सचेंज फोर्स, क्योंकि इनकी रिलेटिव स्पेसेस जो हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो हैं, वो आफ्टर इंटरेक्शन चेंज हो जाती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिस्कशन है। लेकिन इसके मुकाबले में
बटलेट ये कहता है कि जब टू न्यूक्लियॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनकी स्पेस चेंज नहीं होती है, उनकी स्पिन चेंज हो जाती है, स्पिन ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू बटलेट आइडिया कि अगर साइज ऑफ वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद बोथ न्यूक्लियॉन जो इंटरेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है R1 R2 S1 S2 बिफोर इंटरेक्शन। तो आफ्टर इंटरेक्शन अब पोजीशन कोऑर्डिनेट वही है R1 R2, लेकिन स्पिन कोऑर्डिनेट चेंज हो गए हैं S2 S1। तो इस तरह क्या पता चला कि ये जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू बटलेट, इस फोर्स का क्या नाम होना चाहिए? स्पिन एक्सचेंज फोर्स। लेकिन हेजनबर्ग कहता है थर्ड कि जब टू न्यूक्लियॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनकी पोजीशन कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे और उनकी स्पिन भी चेंज होगी। तो इस फिगर को देखें कि ये प्रोटॉन था, पोजीशन कोऑर्डिनेट R1, न्यूट्रॉन पोजीशन कोऑर्डिनेट R2। प्रोटॉन क्या कर रहा था? एंटी क्लॉकवाइज, और न्यूट्रॉन क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज। दोनों के दरमियान मीज़ान एक्सचेंज होगा, प्रोटॉन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। तो इनकी रिलेटिव पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो गए और स्पिन भी चेंज हो गए। तो इनके वेव फंक्शन को देखें, साई R1 R2 S1 S2 बिफोर इंटरेक्शन। तो आफ्टर इंटरेक्शन साई क्या हो जाएगा? R2 R1, ये R2 R1 और S2 S1, यानी इन दोनों के, सॉरी ये नीचे था जो है, ये मैंने ऊपर वाले में कहा दिया, ये नीचे किया हुआ है R2 R1 S2 S1, यानी उनकी पोजीशन कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गए और स्पिन कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गए। इसलिए हेजनबर्ग ने ये जो थ्योरेटिकल आइडिया दिया था बिफोर युकावा, याद रख लो, इसे कहते थे स्पिन स्पेस एक्सचेंज फोर्स, यानी स्पिन भी चेंज हो गई और एक्सचेंज भी, विच इज स्ट्रांगली फॉलोड बाय एक्सपेरिमेंट। इस आइडिया को हमारा एक्सपेरिमेंट फॉलो करता है। युकावा ने भी कह दिया, लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट हुआ न्यूक्लियर फोर्सेस पे, और ये प्रूव हो गया कि जब टू न्यूक्लियॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दाईं तरफ प्रोटॉन बैठा हुआ है, बाईं तरफ न्यूट्रॉन बैठा हुआ है, बीच में क्या हुआ? मीज़ान एक्सचेंज हुआ। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया और न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया। इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गए और उन्होंने घूमना भी उलट कर दिया। वो क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये क्लॉकवाइज हो गया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था। इस तरह आपस में क्या होती है? इंटरेक्शन या अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, और इस अट्रैक्शन की वजह से कूलम रिपल्शन फोर्स जो आउटवर्ड है वो वीक पड़ जाती है और न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। और जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल की स्फेरिकल शेप है, इसकी भी होती है। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी से ये सारा आइडिया हमने डेवलप किया। लास्ट प्रॉपर्टी स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट हम न्यूक्लियस के अंदर शेल मॉडल को अप्लाई करके समझते हैं कि अगर तमाम न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस पार्टिकुलर शेल में अरेंज हों और उनके ऊपर वही क्वांटम नंबर्स के बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई किए जाएं जो इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई किए जाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर हम न्यूक्लियस को एज ए शेल स्ट्रक्चर मान लें और न्यूक्लियस में हम सिंपलेस्ट न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन लेते हैं, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन विच कंटेन सिंगल प्रोटॉन एंड सिंगल न्यूट्रॉन। इस पॉइंट को समझना है ज़रा, यानी ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन विच कंटेन सिंगल प्रोटॉन एंड सिंगल न्यूट्रॉन। अभी हमने कहा कि न्यूक्लियॉन स्पिन करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियॉन्स है फर्मियान, इनकी स्पिन क्या है? हाफ एच कट, हाफ एच कट। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन में सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन जब स्पिन करते हैं तो उनकी स्पिन की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पैरेलल स्पिन होगी या एंटी पैरेलल स्पिन होगी। अगर एंटी पैरेलल स्पिन है तो हाफ एच कट माइनस हाफ एच कट दोनों एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल करेंगे, रिजल्टेंट स्पिन क्या आएगी? जीरो। सच न्यूक्लियाई डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, यानी जीरो स्पिन जो आपस में एंटी पैरेलल स्पिन है एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल करते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर पैरेलल स्पिन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो स्पिन कोरिलेट करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो रिजल्टेंट स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगी? हाफ एच कट प्लस हाफ एच कट, 1 एच कट, इंटीग्रल एच कट।
तो ऐसे न्यूक्लियाई एक्सपेरिमेंटली इस नेचर में पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह ये पता चला कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो स्ट्रांगली स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है और चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। ये स्पिन डिपेंडेंट को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ सिर्फ आपको मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस एंड सम